جماعت جو گاؤں گاؤں دیہات دیہات قریہ قریہ پہنچ کر دین کا کام کرتے ہیں. آپ کے گاؤں میں نہیں ہے لیکن اڑوس پڑوس میں ہے, اڑوس پڑوس میں ہے آپ کے. یہ تبلیغ جماعت والے, ان کے علماء دیوبند, ہمارا ان سے اختلاف کہاں ہے؟ 100 سال کے اندر اختلاف ہے, 100 سال سے اوپر اختلاف نہیں ہے, 100 سے 150 سال اس سے اوپر اختلاف نہیں ہے. ان کے علماء نے اپنی کتابوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جناب میں, ان کی بارگاہ باعظمت میں ایسے خبیث کلمات لکھے ہیں جسے پڑھنے کے بعد مومن کی روح کانپ جاتی ہے, جیسے خباثتوں کا خمیر. دیوبندی جماعت کا سریل امیر ملا اشرف علی تھانوی کہاں پیدا ہوا تھا؟ تھانہ میں. اور مرا کہاں تھا؟ پخانہ میں. اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں سرکار علیہ السلام کے علم شریف کو بچوں, پاگلوں, جانوروں, درندوں, جمی حیوانات کے برابر کہا ہے. کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, ایسی خبیث بات کہنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ دیکھو مدینہ شریف میں اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, صحابہ کرام کا ہجوم ہے, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اعرابی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے, ایک بدو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے, کہتا ہے اللہ کے رسول میرا اونٹ گم ہو گیا ہے, یہ بتائیے میرا اونٹ کہاں ہے. آنے کے بعد وہ سوال کرتا ہے. 2 لوگ اللہ کے نبی کی بارگاہ سے اٹھتے ہیں, یہ 2 لوگ مسلمان ہیں, نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, رخ والضحا کو دیکھتے ہیں, زلف واللیل کو دیکھتے ہیں, یہ دونوں مسلمان ہیں. یہ دونوں باہر نکل کر کہتے ہیں کیسا پگلا ہے, اگر اونٹ گم ہو گیا ہے تو جنگل میں تلاشنا چاہیے, کھیت کھلیان میں تلاشنا چاہیے. ارے نبی کو کیا معلوم اونٹ کہاں ہے؟ انہوں نے کتاب نہیں لکھی, انہوں نے مدرسہ قائم نہیں کیا, انہوں نے یہ عقیدہ قوم کو نہیں دیا کہ نبی سے زیادہ علم شیطان کو ہے. یہ نہیں کہا نبی جیسا علم بچوں, پاگلوں, جانوروں کو ہے. صرف اتنا کہا اگر اونٹ گم ہو گیا تو نبی کو کیا معلوم. یہ کہہ کر یہ لوگ واپس آئے تو بلبل سدرا حضرت جبریل امین قرآن کی آیت لے کر اتر رہے ہیں, قرآن کی آیت لے کر اتر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ یہاں سے جانے کے بعد تم کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول راستہ کٹنے کے لیے ہم لوگ ہنسی مذاق کر رہے تھے. قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ, جب آپ ان سے پوچھو تو یہ کہیں گے ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ, تم فرماؤ کیا اللہ, اس کے رسول اور اس کی آیتوں سے مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا, بہانے نہ کرو, قد کفرتم, تم کافر ہو چکے ہو, بعد ایمانکم, ایمان لانے کے بعد. زمانہ خیر القرون کا مسلمان, رسول اللہ کا دیدار کرنے والا مسلمان اگر یہ کہے اونٹ گم ہو گیا تو نبی کو کیا معلوم. قرآن کہتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, بہانے نہ بناؤ, تم کافر ہو چکے ہو. ایمان لانے کے بعد 14ویں صدی میں انگریزوں کا نمک خوار, نمک حلال ملا اگر یہ کہے نبی جیسا علم بچوں, پاگلوں, جانوروں کو ہے, بتاؤ کیا وہ مسلمان ہے؟ پیچھے والوں کا اس مسئلے میں کچھ اختلاف ہے کیا بھیا؟ ہو سکتا ہے یہاں بھی محقق لوگ بیٹھے ہوں. آج کل بڑے محقق لوگ پیدا ہو گئے, عجیب عجیب پیدا ہو گئے. ایک صاحب مجھ سے ٹکرائے, ٹکرانے کے بعد دہلی ایئرپورٹ پر تشریف لائے. ان کا وجود نامسعود جب میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا جبل اللحم, گوشت کا پہاڑ. معلوم پڑتا تھا کہ ہندوستان کے وزیر رزق و خوراک ہیں. بولے مولانا آپ کہیں دیکھے دیکھے لگ رہے ہیں. میں نے کہا دیکھا ہوگا. بولے آپ کا اس میں گری کیا ہے؟ آپ کا اس میں گری. میں نے کہا کلیم حنفی. بولے اچھا آپ وہی ہیں جو فون پر مناظرہ کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا فون پہ مناظرہ کرنا حرام ہے, شرک ہے, ناجائز ہے, کیا ہے؟ بولے نہیں کچھ نہیں ہے لیکن آج ہم سے بھی ہو جائے. تو میں نے کہا للہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے, یہاں پر ہندو ہم دونوں کو مسلمان سمجھ رہا ہے اور کہیں گا 2 ملا آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں. تو ایک کام کرو باہر نکلو تو تمہارے ذوق کے مطابق تمہیں سامان دیا جائے. نہیں بولے آج ہی ہو جائے, یہی ہو جائے. تو میں نے کہا ہو جائے تو آئیے, اینی ٹائم موسٹ ویلکم فور ٹھکائی. لائیے تشریف. آئے صاحب,
बोले मौलाना वो क्या है जो नहीं मिलता खुदा से जिसे तुम मांगते हो मुस्तफा से। तो मैंने कहा ये कौन सा मुनाजरा हुआ भैया? नहीं, बोले जवाब देना पड़ेगा आपको। वो क्या है जो नहीं मिलता खुदा से जिसे तुम मांगते हो मुस्तफा से। मैंने कहा सुन, वो चंदा है जो नहीं मिलता खुदा से जिसे तुम मांगते हो सऊदिया से। नहीं मांगते। इतने बड़े गदहुल लजी हैं, अल्लाह के सिवा किसी से मांगना शिर्क शिर्क शिर्क। सैयद साहब बंबई में मेरा प्रोग्राम था, नारायण नगर में 12 रोज का प्रोग्राम होता है, अलग अलग मुकर्रिर होते हैं, तो सबको बोलने का मौका दिया। जब मेरी बारी आई तो पुलिस स्टेशन में जाकर बैठे, बोले इस मौलाना को हम नहीं बोलने देंगे, बोले ये बहुत गाली देता है और इसके पोस्टर में भी गाली लिखी है। पुलिस वाले ने हमको बुलाया, कहा भैया आप क्यों गाली देते हैं इनको? मैंने कहा ना मैं तो गाली नहीं देता इनको। बोले ये तो कह रहे हैं कि आप गाली देते हैं और आपके पोस्टर में भी गाली लिखी है, आपकी तकरीर नहीं होने देंगे। तो मैंने कहा कहां गाली लिखी है? तो एक पुलिस वाला मुसलमान खड़ा था, उसने पोस्टर पढ़ा, बोले ये शेर पढ़ो इसमें गाली है। पुलिस वाले ने शेर पढ़ा, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस। तो एक वहावड़ा बोलता हाँ बस बस, इबलीस से मुराद हम लोग हैं, हम खुद कह रहा है कि इबलीस से मुराद हम हैं, हम देखो हमको गाली लिखी कि नहीं लिखी। तो पुलिस वाला कह रहा है जब इबलीस से मुराद आप लोग हैं तब तो बिल्कुल सही, इनकी तकरीर होगी और होना चाहिए। अल्लामा निजामी सही कहते थे, वहाबी बोलता मगर समझता नहीं, अकल तो होती नहीं। इनका अकीदा क्या है? हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए, अकीदा है ना। यहां कोई वाकई में आलिम बैठा हो जो दरसे निजामी का माहिर हो तो उससे पूछना, अरबी जुबान की एक लुगत है लिसानुल अरब, और लुगत किसी मसलक की नहीं होती, मुत्तफकुन अलैह होती लुगत, डिक्शनरी। उसमें लफ्ज़े हुजूर का माना देखो, ये क्या कहते हैं? नबी मर के मिट्टी में मिल गए। लिसानुल अरब में अल्लामा मंजूर अफरीकी रहिमहुल्लाह हुजूर का माना लिखते हैं करीब रहने वाला, पास रहने वाला। ये लोग खुद कहते ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गधे कहते भी हैं कि करीब रहने वाले और फिर कहते हैं कि मट्टी में मिल गए। यही इनके अंदर है। अल्लामा निजामी फरमाते थे वहाबी बोलता है मगर समझता नहीं, और हकीकत है ना इनके बड़ों के पास अक्ल थी ना इनके पास अक्ल है। बुक तो देंगे, बकते भी नहीं है, बुकते हैं। बुक देंगे लेकिन मालूम नहीं क्या बुका। एक साहब बड़े ताव में आए, बोले मौलाना आप हमारे पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो मैंने कहा तू मुसीबत कौन सी यार, मैं तेरे पीछे नमाज क्यों पढ़ूं? नमाज का वक्त भी तो नहीं है। तू है कौन? बोले मौलाना मैं देवबंदी, मैं देवबंदी। तो मैंने कहा सुन, अल्लाह ने औरतों को 3 चीज नहीं दी। अल्लाह ने औरतों को नबी बनाया, अरे बोलो भाई, नबूवत नहीं दी। कोई खलीफा औरत बनी, अल्लाह ने खिलाफत नहीं दी। अल्लाह कोई इमाम औरत बनी आज तक, अल्लाह ने औरत को नबूवत भी नहीं दी, खिलाफत भी नहीं दी, इमामत भी नहीं दी। मैंने कहा सुन, हम अल्लाह के बंदे और हमारी मस्जिद में इमाम अल्लाह का बंदा, तो बंदे की नमाज बंदे के पीछे होती है, बंदे की नमाज बंदे के पीछे होती। अब मैं अल्लाह का बंदा और तू देव की, अब बंदे की नमाज बंदी के पीछे होगी, बंदे की नमाज बंदी के पीछे होगी। और भी बंदी किसकी? देव की। अकल तो है नहीं, बोल तो देंगे देव बंदी, इतना घटिया नाम है कि नाम से ही कराहत होती है। बहरहाल इन्हीं देवबंदी मौलवियों ने अपनी किताबों में ये सारी खबासत लिखी है। ये तो देवबंदी लंका का एक रावण था, अशरफ अली थानवी, जिसकी किताब मैंने बताई। इनका दूसरा बड़ा कठमुल्ला मौलवी कासिम नानोतवी, उसने अपनी किताब तहजीरुन नास में सरकार के आखिरी नबी होने का 3 जगह इनकार किया। कितनी जगह? मुसलमानों का बच्चा बच्चा जानता है कि जितने नबी आने थे आदम से हजरत ईसा तक आ गए, लेकिन जब बतने आमिना से आमिना का लाल दुनिया में तशरीफ लाया तो इस हैसियत से तशरीफ लाया कि अब 7 तबक जमीन और 7 तबक आसमान में नबी की हैसियत से कोई पैदा हो ही नहीं सकता है। अल्लाह ने सरकार के दोनों शानुओं के बीच में मोहरे नबूवत लगा दी है और ये इरशाद फरमा दिया कि अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद जमीन के 7 तबकात और आसमान के 7 तबकात में कोई नबी आ ही नहीं सकता। लेकिन देवबंदियों का अकीदा है कि नया नबी पैदा हो सकता है। इनके एक और मुल्ला मौलवी रशीद गंगोही ने अपनी किताब फतावा रशीदिया में अल्लाह के लिए झूठा होना मुमकिन लिखा है, और इतना ही नहीं कौवे को हलाल भी लिखा है।
खाने पर सवाब भी लिखा है। इनके एक और मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी ने किताब बराहीन कातिया में शैतान के इल्म को हुजूर के इल्म से ज्यादा लिखा है। अब ऐसा नहीं है कि ये किताबें कुछ आजकल लिखी हूं, 150 साल पहले ये किताबें लिखी गई, उसी वक्त छपी, आज तक छप रही है। लिखने वाले मरकर जन्नत से एक स्टाफ पहले पहुंचे, आज तक ये किताबें छप रही है, आज तक ये किताबें छप रही है। देवबंदियों का ये अकीदा है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जितने बातिल फिरके हैं, देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, अहले कुरान हो, अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो इसके लिए 2 बातें जरूरी हैं। एक है आप इल्म हासिल करो। यार एक बात बताओ, आप शहर में चले गए, या आपसे मैं यही पूछ लूं, इतना बड़ा मजमा बैठा है, कि सुन्नी होने के लिए क्या जरूरी है? एक आदमी सुन्नी नहीं है तो क्या वो काफिर होगा? नहीं पता। आप बेसिक सीखो यार। जरूरियात इस्लाम क्या है, जरूरियात अहले सुन्नत क्या है, हम सुन्नी क्यों हैं, अहले सुन्नत के अकाइद क्या हैं, और उन अकाइद की दलील कुरान हदीस में कहां है। इतना इल्म तो सीखो कि जब किसी वहाबी देवबंदी से मुकाबला हो तो आप कुरान हदीस की रोशनी में जवाब दे सके। इतना इल्म जरूर सीखो, अपनी औलादों को सिखाओ। जगह जगह मदरसे कायम है। इल्म सीखने के लिए उम्र का क्या लेना देना। आप बूढ़े हो चुके हैं, शर्म की कोई बात नहीं, सीखिए। अब देखो, मैं उस वक्त वहां था रूम में, एक साहब आए तो उनसे मैंने पूछा नमाज क्या है? बोले नमाज फर्ज है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नमाज क्या है? फर्ज है। फर्ज का मतलब मालूम है आप? औरत की शर्मगाह को फर्ज कहते हैं। अब उनको दाद और जीम में फर्क नहीं मालूम। आप पढ़ते हैं कुल हु अल्लाहु अहद, पढ़ते हो ना? क्या मतलब है इसका? कह दो अल्लाह झूठा है। अहद के माने झूठा। कुल हु अल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है। अरबी में मखरज बिगड़ने से माना बदलता है, मखरज बिगड़ने से माना बदलता। अल्लाह के बंदो, इतना दीन तो सीखो कि आपकी नमाज सही हो, रोजा सही हो, गुस्ल सही हो। आज क्या वजह है कि आप नमाज में खड़े होते तो पूरे हफ्ते का हिसाब कर लेते हैं? उसकी वजह यह है कि नमाज में वसवसे आते हैं। वसवसे क्यों आते? जब वजू दुरुस्त नहीं होती, वजू के मसाइल आपको मालूम नहीं, पाकी नापाकी के मसाइल नहीं मालूम, रात में कपड़ा गंदा हो गया, कपड़े में 1 दिरहम से ज्यादा मनी लग गई, अब वही कपड़े घर के बाकी कपड़ों में मिलाकर धो रहे हैं तो सारे कपड़े नापाक हो गए। कपड़ा पाक करने का तरीका सीखो। अल्लाह के बंदो, सिर्फ बड़े बड़े जलसे करके नारे लगाकर काम नहीं चलने वाला, इल्मी तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। आज जो हमारे लोग वहाबी देवबंदी बन गए, जब मैं उनसे पूछता हूं तो वो कहते मौलाना जब तक मैं सुन्नी था मुझे वजू करना नहीं आता था, मुझे गुस्ल करना नहीं आता था, इन लोगों ने मुझे नमाज पढ़ना सिखाया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के लिए संभल जाओ, इल्म दीन हासिल करो। अरे मेरे भाई, नबी ने फरमाया तलबुल इल्म, इल्म का तलब करना फरीज़तुन, फर्ज है, अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान पर, सिर्फ उलमा पर नहीं है। उलमा ज्यादा इल्म हासिल करेंगे, लेकिन आप इतना इल्म तो सीखो जिससे वजू, गुस्ल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात के मसले दुरुस्त हो। हम सुन्नी क्यों है? अहले सुन्नत के अकाइद क्या है? हम मुसलमान क्यों है? मुसलमानों के अकाइद क्या होने चाहिए? कम से कम इतना मालूम करने के लिए तो इल्म हासिल करो कि खाली न्याज कर करके पेट बड़ा करना है। जैसे ही असद साहब बैठे, लोग फौरन दौड़ गए, पूरा खाना साफ कर दिया होगा, खा खा के पेट बढ़ा रहे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह कुर्बानी मांगता है और सुन्नी बेचारा बिरयानी मांगता है। दीन के लिए कुर्बानी पेश करो और खुदा के लिए कुरान करीम मखारिज के साथ पढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि आप डायरेक्ट तर्जमा करना शुरू कर दें, अरबी लुगत लेकर आए और लफ्ज का तर्जमा करना शुरू करें। इतना कुरान सही पढ़ो कि आपकी नमाज सही हो जाए। आप में से कभी किसी ने किसी आलिम के पास जाकर ये कहा हजरत देख लीजिए मेरी नमाज कैसी है? कहा कभी? नहीं कहा। किसी आलिम को 100 रुपए 500 रुपए दिए कि हुजूर मेरी तरफ से रख लीजिए, मेरी नमाज दुरुस्त करवाइए। नमाज के ताल्लुक से हम लोग बहुत गफलत का शिकार है। अल्लाह के बंदो होश में आओ। इसके नबी का दावा करते हो, नबी फरमाते हैं कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। आज यही वजह है कि हम लोगों ने मस्जिदों में जाना छोड़ दिया। वहाबी देवबंदी हमारी मस्जिदों पे कब्जा कर रहे हैं। नमाजों की पाबंदी कीजिए, नमाजों को सही कीजिए। अहले सुन्नत